Yes. My query is that initially you had 180 applicants, and today you claim that it's about 900 plus. Correct me if I'm wrong. No, you are correct. So basically, I'm told that there was some draw of lots for allotment of these plots. And that is for how many people at that point in time? How many claimants were there? They were allowed by 600 claimants. 600. So now nearly another 50%, as you said, 900 plus. So what are you going to do about this? Yeah, fair enough. So this balance people, how are you going to accommodate? Are you going to do a redraw, or how exactly are this balance? So that draw, it is now stayed because we are not going to do anything because your COC does not give me the mandate to move further. क्योंकि मेरे पास मिस्टर विनय सिंघल का भी कई बार मेल आ चुका है कि आई एम नॉट टू टेक एनी स्टेप फर्दर अनलेस फ्रेश मैंडेट बीइंग गिवन. In that case, everything would be kept state right now. No, that pay is applicable for 600 people with the draw. But my only question is, I'm trying to first of all accommodate the things for the Jaipur Bhaskar enclave, because those plots have to be taken back from the landlord of Jaipur Bhaskar enclave, and for that we have already moved the application with NCLT, as well as we have paid for the cooperation from JDA also, and whatever the plots I get from those Bhaskar enclave Jaipur, I'll put the details before COC, and COC can decide how to accommodate the plot buyers, because I had made the allotment. That was question. So right now, it would be better if COC could decide how to do with those plots. Sir, yesterday you have withdrawn the case against Ashok Agarwal. Now, how you will get the plots from him? That is not withdrawn. It is your wrong allegation. The case, because I always try to move positively, whatever the application I had made against you, that I had taken as withdrawn. Sir, I am talking about Ashok Agarwal. I am nowhere talking about myself. You may proceed. I have not withdrawn any application against Ashok Agarwal. Okay. I had withdrawn the cases that I had made application against 5 plot buyers who created nuisance in my office. That application I had withdrawn. Why you have withdrawn, sir? When they when your allegation is that those people have. I don't want to stuck off in a single case or simple case, so that's why with positive mode I want to. Because there was no finding from the police. Anyway, sir. We'll see. Sir, दूसरा question, sir. No question, please. Please don't waste time. Vinay Singhal ji, please don't waste time. No personal question in this meeting. There is no personal question, please. Can I ask one question? Yeah, Mr. Prabhakar, my query still remains. Sir, please अपना कैमरा एक बार आप ऑन कर ले, please. Yes, sure. Sir, you should be known about the fact that company has enough land that could be accommodated to the plot buyers. That is in the name of. एक बार क्वेश्चन पूछने दीजिए कालरा जी को. इन्होंने जो पूछा मैं समझ गया. इन्होंने जो पूछा कि भास्कर वैली वालों के लिए या जो बाकी प्लॉट बायर्स हैं उनको क्या मिलेंगे, यही बात है. तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कंपनी के पास इनफ लैंड तो है, बट दैट इज इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स. जब तक उस इंडिविजुअल से कंपनी के नाम में आप लैंड नहीं लेते हैं, तब तक किसी भी प्लॉट बायर की सिक्योरिटी नहीं है. आप ये समझें, आज की डेट में इंडिविजुअल को डायरेक्टली एनसीएलटी ये नहीं कहा कि जाकर के कंपनी के नाम में ट्रांसफर कर दो. एनसीएलटी ने एडवाइजरी करी कि आरपी अप्रोच, देन यू कैन ट्रांसफर द लैंड टू द कंपनी. ठीक है. और उस ऑर्डर के बेस पे अगर आप ऑर्डर देखेंगे, मैंने ओडियर की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, 31 अगस्त की ऑर्डर है, 31 अगस्त 23 का, जिसमें हमने जितने सारे रिस्पोंडेंट थे, जो इंडिविजुअल थे जिनके नाम में आज की डेट में लैंड है,
जो कंपनी के फंड से एक्वायर किया गया था, उन सारे के अगेंस्ट में हमने ऑर्डर्स किए थे। और उस ऑर्डर्स के बेस पे जो 3 इंडिविजुअल एम्प्लॉय थे, गौरव तोटी, कर्नल तोटी और उसका एक ब्रदर, ठीक है, उनसे हमने सेल डीड साइन तो करवा ली, कुछ लैंड, छोटे मोटे लैंड हमने ट्रांसफर तो करवा लिए, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है कि बाकी को मैं ट्रांसफर करवाऊंगा, जो कि क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाकी जो इंडिविजुअल हैं, चाहे परमेश कुमार या उसकी फैमिली, या सुधीर चौहान या उसकी वाइफ खेम चौहान या उसकी फैमिली, ये लैंड पूरी ट्रांसफर कर देंगे जो कि कंपनी के फंड से परचेज किए गए थे। तो आप लोगों के पास इनफ लैंड है जो कि आप लोगों को प्लॉट मिल जाएंगे। क्या आप राइटिंग में लिख के दे सकते हैं कि सबको आप प्रभाकर जी क्या आप राइटिंग में दे सकते हैं कि कितने प्लॉट वायर हैं? प्लीज एक सेकंड जो आप बोल रहे हैं, आप हमारे प्लॉट वायर को ये एश्योरेंस राइटिंग में दे दीजिए कि यदि 1000 प्लॉट वायर है, मैं सबको प्लॉट दे देता हूँ, आप अलॉटमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी प्लॉट वायर से पर्सनली कि वो कल से ही आपको अप्रूवल दे देंगे कि आप ट्रांसफर भी कराइए, आप सबकी लैंड अलॉट भी कराइए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसे कोई एश्योरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि तो सर आप इसका मालिक पे मैं आ रहा हूँ, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। आज तो फैक्ट बता रहा हूँ कि फैक्ट ये सर, एक सेकंड रुकिए, वहीं पे मैं आ रहा हूँ। आप 100 लोगों को प्लॉट दे देंगे और 800 को नहीं मिलेंगे, उनकी रजिस्ट्री होगी, वो रिवर्स भी नहीं हो सकती रजिस्ट्री। तो आप ये रिस्क क्यों करना चाहते हैं प्लॉट वायर के साथ? 950 में से सर, एक सेकंड तो होल्ड करिए, 950 में से 150 की रजिस्ट्री आपने करा दी, सारा खर्चा आपने प्लॉट वायर के जिम्मे डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और 800 को नहीं मिले तो उसमें क्या होगा? जिनकी रजिस्ट्री आप कर चुके होंगे उनसे लैंड वापिस ले लेंगे क्या आप? प्लीज देखिए, रजिस्ट्री तो मैं अभी किसी को नहीं कराने जा रहा। जो रजिस्ट्री हुई थी एनसीएलटी के डायरेक्शन पे ट्रायल बेस पे 1-2 रजिस्ट्री हुई, उसके बाद रजिस्ट्री जो भी होगी, जो सीओसी मैंडेट देगा उसके हिसाब से मेरा काम है, जो भी अवेलेबिलिटी होगी मैं सीएससी को प्रेजेंट कर दूंगा कि ये मेरे पास अवेलेबल है, आप इसको अभी करें या आप 5 साल बाद करें, इट्स अप टू यू। दूसरी बात सर, दिस इज द ट्रांसपेरेंसी सर, कि आप जो भी चीजें करें वो प्लॉट बायर की अप्रूवल के बाद ही करें। तो ये जो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक जो किया, आपने अपने आप को एज ए प्रमोटर समझ के किया, आपने कभी भी किसी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं समझी प्लॉट बायर के लिए कि प्लॉट बायर से मैं किसी चीज की कोई अप्रूवल ले लूं। आप हो जाता है उससे सीओसी का मिनट कहने दीजिए, प्लीज। प्लॉट बायर से कभी आपने किसी चीज की कोई अप्रूवल नहीं ली सर। विनय जी, आप 6 सीओसी का मिनट पढ़ लें, उसके बाद एलिगेशन। सर मैं मिनट पढ़ चुका, मैं तभी आपसे बात कर रहा हूँ। जो आपने तो मैं शेयर कर दूं मिनट सब यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि आप कहें तो मैं मिनट से आप पे शेयर कर दूं। अरे सर, महापात्रा जी का जब रिजेक्ट कर दिया तो आप सर, आपने मुझे कोई आना था नहीं जो कि फ्री में काम करने वाला हो, फ्री में काम करे, मुझे किसी को काम की बात नहीं है सर। मैं केवल रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ। आपको प्लॉट बायर से एक बजट अप्रूव कराना चाहिए, एक मैंडेट लेना चाहिए, ये नहीं कि आपने कि हाँ मैंने कर दिया। प्लीज प्रभाकर जी, आप मैं ये कह रहा हूँ आपको, जो प्लीज हाँ जी विनय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे एडवोकेट अवेलेबल करवा दें, जो भी कॉस्ट होगा आप डायरेक्टली उसको पे कर देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। नहीं सर, मुझे अप्रूव नहीं कराना, आप उसे मैंडेट को एजेंडा बना के रखिए, एक बजट बना के दीजिए, प्लॉट बायर की मीटिंग में हम रखते हैं, अप्रूव कराते हैं, उसके बाद में आप करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और ये तो आप समझते हैं कि हम तो एज ए आरबीएम कस्टोडियन ही तो काम करते हैं, अप्रूवल तो हमें सीओसी देती है। एक सेकंड, मेरा एक क्वेरी अभी रहती है। विनय जी मुझे एक बात करनी है, आप मेरे को अलाउ कराइए प्लीज। मैं बोल सकता हूँ विनय साहब? एक मेरा भी क्वेश्चन है बीपी शर्मा। विनय जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। आज सुधीर जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं बीपी शर्मा जी के पास आ जाता हूँ, और फिर उसके बाद में मैं नितिन जी के पास आ रहा हूँ। प्लीज हाँ, मेरा जी आप अपना क्वेश्चन बताइए, फिर मैं बीपी शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। My query is related to interim finance. Now you have clarified. सर थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे प्लीज, आज मेरे साथ में दिक्कत है थोड़ी सी, प्लीज। सुधीर जी मैं दोबारा बोल, मेरा जो क्वेरी है related to interim finance. Now the RPS given a clarification. नितिन जी अपना म्यूट कर लीजिए, नितिन जी आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा।
नितिन जी अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। सर मेरा ना यहाँ पे म्यूटेड ही शो हो रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोग को क्यों अनम्यूट हो रहा है। यहाँ पे म्यूटेड शो हो रहा है, वादा करता हूँ। Okay, my query relates to interim finance. RP has clarified this interim finance which he has been asking for is not part of CRP expense. If he can give it in writing, then probably as plot buyers we can reconsider the interim finance, and if it is in the benefit of the company and for the ongoing process, we can relook into it. सुधीर जी आईबीसी में लिखा हुआ है कि जो इंटरिम फाइनेंस कॉस्ट है वो सीआरपी कॉस्ट का पार्ट होगी। प्रभाकर जी, आई एम राइट? You are right, but that is exclusively utilized for registration of land. That is not for the CRP cost. That is not for the CRP expense. नहीं, इंटरिम फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं सर। Ask for again, Prabhakar ji, can you put it in writing and ask for this expense allowance again? We'll reconsider and probably allow it. So long as it is not. I hope Mr. Kalra, you have not gone through the resolution that we had proposed earlier. That was already written that exclusively used for the stamping and registration charges of the land for transfer, not for any other purpose. प्रभाकर जी, यही बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के खर्चे हैं या ट्रांसफर के खर्चे हैं वो आरए को बियर करने हैं। सर आप ट्विस्ट ना करें, सर आप ट्विस्ट ना करें, आप मैटर को सीधा जाने थे। ना सर, ट्विस्ट नहीं सर। हमारा जो क्वेश्चन ये है कि जो आरए खर्चा बियर करना चाह रहा है सुधीर जी, और क्वेश्चन है सीआरपी कॉस्ट की पार्ट होगी, इंटरिम फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। जो खर्चा होगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, जो चीजें होंगी वो सीआरपी कॉस्ट का पार्ट होगी। राइट प्रभाकर जी? नहीं, but that is not the CRP cost ना सर। स्टाम्पिंग एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट की जो कॉस्ट आएगी, जो इंटरिम फाइनेंस लेने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो तो सीआरपी कॉस्ट का पार्ट होगी। सर मैं इस मुद्दे पे पहले भी कह चुका हूँ कि एक बार रेजोल्यूशन प्लेस किया था, वो नहीं प्रपोज हुआ, नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो दोबारा मैंने इस रेजोल्यूशन को प्रपोज ही नहीं किया। एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्रपोज एनी रेजोल्यूशन फॉर इंटरिम फाइनेंस। Fair enough. If that is the case, I think then. Sir, my two questions, Chris. वीपी शर्मा जी को अलाउ करिए। सुधीर, ओ सूरज, वीपी शर्मा जी को अलाउ कर दीजिए प्लीज। जी वीपी शर्मा सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच विनय जी। प्रभाकर जी, मेरे कैमरा ऑन कर लें, अगर हो सकता है तो प्लीज कैमरा ऑन कर लें शर्मा जी प्लीज। हाँ, प्रभाकर जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये है जो विनय जी कह रहे हैं उसको आप सर ठीक से समझिए, और उनकी बात में पॉइंट है कि जो आप खर्चा हो रहा है अभी, आपका जो खर्चा आरए को करना है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, आरपी क्यों कर रहा है वो खर्चा। तो एक तो मेरा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप ये अकाउंट जो है ये आप सेपरेट मेंटेन करिए। जो आरए का खर्चा आप कर रहे हैं और जो आरए को करना है वो आ चुके, इसमें तो वहाँ लिमिट है। जो आरए का जो रेजोल्यूशन जो आया सबमिट हुआ है उसमें तो लिमिट है 1 करोड़ की। तो जो खर्चा हो रहा है उस अकाउंट पे जो आरए को करना है आप उसको अलग अकाउंट रखिए और उसको आरए के साथ डील करिए। और जो हमारा जो क्रिप का जो खर्चा है जो एग्री हुआ है 40 लाख प्लस जो थोड़ा और हुआ है उसका आप अलग अकाउंट रखिए, उसके लिए हम लोग उसको करेंगे। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आरए का जो पॉइंट जो विनय जी ने जो पॉइंट उठाया वो जेन्युइन पॉइंट है, अदरवाइज ये इतना खर्चा हो जाएगा हम लोग कहाँ से देंगे ये सब। सर सारे खर्चे अलग रखे गए हैं, सारे खर्चे नहीं अलग अकाउंटिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि मर्ज करके रखा हुआ है। ठीक है, नहीं दूसरा अब नहीं अभी आई एम नॉट फिनिश्ड। सेकेंडली, एनी सच एक्सपेंडिचर शुड बी ब्रॉट टू क्रिप एंड सीओसी में अप्रूव करा के आप खर्चा करिए। बिल्कुल सही है। हाँ प्लीज। दूसरा पॉइंट ये है, आपको मैंने ईमेल किया था, ये मैं अपने बिहाफ पे नहीं बाकी उन लोगों के बिहाफ पे भी बोल रहा हूँ जिनको आपने पार्शियल अलॉटमेंट किया सर वो अलॉटमेंट वो अलॉटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट। हाँ, मैंने आपको मेल भी किया था, आपने मुझे मेल पे रिप्लाई भी किया है, जो आप कहना चाह रहे हो आपने लिख के भी दे दिया मुझे।
अभी ऐसा है आपका कि आपने जो पहले अनजस्टिफाइड अलॉटमेंट किया था, एक तो उसको आप रेक्टिफाई करें। दूसरा ये है आपका कि आप कोई भी अलॉटमेंट ऐसे नहीं कर सकते जस्ट एट योर विश एंड विल। द प्रोसीजर हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय COC एंड देन ओनली यू कैन डू दैट। अभी आपने मैं अपना केस ले लूं, मेरे साथ और भी लोग हैं जिनको आपने पार्शियली किया है अलॉटमेंट, और आप ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है NCLT ने बैन लगा दिया है कि आप उसको नहीं करेंगे। बट आप तो करके बैठे हैं, और अभी आपने कहा कि जैसे ही अब लैंड मिलेगी तो मैं रजिस्ट्री शुरू कर दूंगा। तो रजिस्ट्री तो आप शुरू कर देंगे उसी के ऊपर जो आपने ऑलरेडी अलॉट किया हुआ है। तो ये आप डुप्लीकेसी कर रहे हैं, आप मतलब अपने हिसाब से चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप विनय जी ने जो पॉइंट रखे हैं, ये जो पुरानी अलॉटमेंट है आप उसको कैंसिल करिए और एक नया प्रोसीजर लाके COC में अप्रूव करा के फिर उसको आगे बढ़िए। ये मेरे दो पॉइंट है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। जिनके 1000 गज के प्लॉट के अलॉटमेंट है जो कंपनी ने दे रखे हैं, उन्हें RP साहब ने 400 गज का प्लॉट अलॉट करा, 500 गज का करा। जिन्हें 250 गज के 4 प्लॉट अलॉट कर रखे थे, उनकी एक प्लॉट देके 1000 गज गई। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अवेलेबल है, प्लॉट अवेलेबल ही नहीं है 1000 गज का, और उन्हें 250 गज के चार उनके अलॉटमेंट थे, उन्हें इकट्ठा करके पूरा 1000 गज का प्लॉट दे दिया और रजिस्ट्री भी करा दी। ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी? ये कहाँ पे लिखा हुआ था? किससे? और प्रभाकर जी 1 सेकंड रुकिए। और 1000 गज वाले को 1000 गज का जिसका अलॉटमेंट था कंपनी ने कर रखा था, उसे 400 गज का प्लॉट दे दिया, उसे 600 गज कहाँ जाएगा उसका? और 250 वालों के 4 को जोड़ के 1000 दे दिया। वैसे आपकी ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? अरे ये आप मेरे बारे में पूछ रहे, मैं जवाब दे दूं? अरे अभी आप शांत रहिए प्लीज, एक एक करके जवाब दे दूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इसीलिए किसी के नाम पे मैं जाइए। आप मुझे बोलने देंगे? मुझे बोलने देंगे? अरे नागपाल जी को म्यूट कर दो, नहीं तो इन्हें हटा दो यहाँ से। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, आरपी साहब से मेरा क्वेश्चन है, आरपी साहब को बोलिए। VP शर्मा सर, विनय सर, प्रभाकर जी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज जब आपको वो बोलेंगे मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सर, जितने अलॉटमेंट प्रायर टू CRP थे वो अलॉटमेंट तो कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद विद इन CRP जो अलॉटमेंट थे वो सारे अलॉटमेंट बाय मैंडेट ऑफ COC कैंसिल कर दिए जाए, और जो भी अलॉटमेंट होगा फ्रेश अलॉटमेंट या तो RAI वो अलॉट करे, या आप लोग जो अपनी कमिटी बना करके अलॉट करना चाहें वो करें। मेरे पास जो अवेलेबिलिटी होगी, मैंने पीछे भी दिया था 8 COC में ये प्रपोज भी किया था कि जो भी प्लॉट मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं COC को दे दूंगा, और COC अपनी कमिटी बना करके उसमें अपनी अलॉटमेंट जिसको जैसे करना होगा वैसे आप कर लेंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे अपनी तरफ से अलॉट नहीं करनी है। तो जो भी मेरे पास इन्वेंट्री होगा वो सारी इन्वेंट्री मैं COC को प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा, और COC उस पे अलॉटमेंट करके जैसे करना चाहिए वैसे करें, या RA अगर अलॉट करे तो RA करे। ठीक है सर। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि आपने जो 4 प्लॉट को इकट्ठा करके जो 1000 गज का प्लॉट दिया है, इकट्ठा किया सर, वो सर 1000 गज वाले को 400 गज का प्लॉट दिया है, उसमें क्या जस्टिफिकेशन है? अलॉटेड था, बोल तो रहा हूं, वो अलॉटमेंट लेटर मेरे पास आया था कि वो पिछला CRP से पहले का अलॉटेड था। 250 गज के 4 प्लॉट जो आपने जोड़ के दिए 1000 गज का, वो प्लॉट नहीं जोड़े, मैंने प्लॉट नहीं जोड़े। अलॉटमेंट लेटर अगर आप मुझे देंगे कि ये मेरा अलॉटमेंट लेटर है क्लेम के साथ, तो क्या मैं उसको रिजेक्ट कर दूं? उनके 4 क्लेम को आपने मर्ज नहीं करा सर। 4 क्लेम जो हमारे बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से हैं, अगर लेटर जो मेन था वो 1000 गज का एक ही प्लॉट था सर। मैं आपको अलॉटमेंट लेटर भेज देता हूँ, उसमें सारी डिटेल क्लियरली। मैं तो आपसे कुछ कंफ्यूजन कर ही नहीं रहा ना, मैं तो केवल यही कह रहा हूँ कि जो उनके अलॉटमेंट थे 4 अलॉटमेंट थे या एक अलॉटमेंट था? एक अलॉटमेंट में चारों को मर्ज करके एक अलॉटमेंट किया हुआ है। वो अलॉटमेंट लेटर में आपको आपने कराया या कंपनी ने कर रखा है? वो एक 4 को एक कंपनी ने कर रखा है, मैंने नहीं किया हुआ है, पहले का है अलॉटेड। ओके ठीक है, इट इज क्लेरिफाइड। ठीक है, मिस्टर नितिन जी को अलाउ करिए प्लीज। सूरज, मिस्टर नितिन सर, एक क्वेश्चन है। अभी तक कोई भी प्लॉट जैसे प्रॉमिस किए गए थे, सबसे पैसे भी लिए गए, मुझसे भी पैसे लिए गए, PLC भी मुझसे लिया गया, उसके बाद वो सारी अलॉटमेंट्स कैंसिल हो गई, ठीक है ना? अब वो PLC बहुत सारे लोगों से लिया गया,
अब किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे अलॉट होगा, किसी को कौन सा नहीं होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है किसी तरह की भी। अब जिससे अमाउंट वो ले लिए गए उसको तो फील हो रहा है ना कि हमारे को तो कुछ बताया नहीं गया। उसके बाद अब एकदम मतलब जब पीएलसी ले लिया गया तो वो रिटर्न भी तो करना चाहिए ना। अब वो आई डोंट नो वो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होगा, बट अल्टीमेटली क्या है कि इफ यू स्टार्ट टेकिंग मनी एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देन वो सारी चीजें सारी आती हैं ना दिमाग में। Sir, who told you there is no accountability? We had already given you the complete account and everything is complete accountable. So please do not raise such kind of allegation that there is no accountability. Number 2, I have already given you the details of plot for the Bhaskar Valley and Bhaskar Enclave, all of them. For Bhaskar Enclave, I had already allotted 303 plots. But few of them, few from you, raised such questions and created such issues that the plot supplier stopped giving me the plots so that I can give you the patta of that time. That was the month of October 2022. If such kind of nuisance and such kind of hurdle could not have faced, in that case you would have already got the plot registration or patta of that plot for the Bhaskar Enclave. But that issue was created by few people from you, not by me. I've already given the details. It was not. It was patta number. Sir, it was never from all the buyers. Maybe a few of them created it. हाँ, few of them created तो दूसरों की गलती तो आप लोगों ने उनके अगेंस्ट में क्या किया? सर हम किसी को तो पता, कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा इसके बारे में। आज आप मेंशन कर रहे हैं तो मुझे मालूम पड़ा। सर आप लोगों को भी तो यूनाइट होना चाहिए था ना। आप लोग यूनाइट नहीं हुए, आप लोगों ने उसको प्रॉपरली रिएक्ट किया नहीं। आई एम टीथलेस लायन, आई डोंट हैव एनी टीथ, आई एम टीथलेस लायन। मैं किसी को काट नहीं सकता, मैं आप लोग के लिए सारा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे डंडे लेकर के मारने आओगे, मुझे तो एक बार कहते हो कि जाकर के सप्लायर के साथ लड़ो, डायरेक्टर के साथ लड़ो, डिपार्टमेंट के साथ लड़ो, और पीछे से मेरे पीछे डंडे मारते हो, तो मेरी खुद की जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो रही है और मैं दूसरे के साथ फाइट भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप ये इशू समझो ना। आई एम द अलोन पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर यू ऑल 951 with department, with supplier, with director, with employee. But what I am getting, I am getting allegation, I am getting the leg bill. आप ये समझो ना। I can understand your point. अब जो हो गया, अब कई लोगों ने के पर्सनल इंटेंशन थी या नहीं थी, कई लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। नितिन जी, अगर आप मेरी जगह होते, ठीक है, तो क्या करते? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अरेंज कर दिया, आपने थाली में सारा दिया, लेकिन खाने वाले ने कहा कि नहीं खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है, तो क्या करोगे आप? अच्छा सर, प्रभाकर जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। हर बंदा, बहुत सारे बंदे, एवरीवन इज डिफरेंट नेचर, कोई भी सेम नेचर का नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। दूसरी बात, अब जो हो गया कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तीसरी बात, अब आगे क्या अच्छा कर सकते हैं? लेट्स डू दिस, लेट्स फिनिश दिस मैटर इन अ गुड वे दैट एवरीवन बेनिफिट्स। मेरा पॉइंट ये है सर, फॉर दैट यू शुड हैव ट्रस्ट, फेथ ऑन समबडी whom you have assigned to do. अगर आपका फेथ और आपका ट्रस्ट बीच में डोल रहा है, तो जो करने वाला बंदा होगा ना, उसका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही डोल जाएगा। वो क्यों करेगा फिर? प्रभाकर जी, उसका ट्रस्ट और उसका फेथ खुद ही डोल रहा है, तो वो क्यों काम करेगा? वो चुपचाप बैठ जाएगा ना। प्रभाकर जी, there were very few valid points. खाना पीना सारा छोड़ करके इधर-उधर भाग करके कर रहा हूँ, और आप लोग को लग रहा है क्या कि मैं अपना बेनिफिट ले रहा हूँ? What I am getting? अच्छा, एक बात प्रभाकर जी, अब विनय जी ने भी कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं जो बिल्कुल वैलिड थे, जो आप भी एग्री करते हो। सो पूरी के पूरे सारे क्रिएटर्स एग्री करते होंगे, ठीक है। कुछ चीजें देखो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, राइट? वो सबके सामने आनी चाहिए थी। बट ठीक है, कोई चीजें नहीं होती, कई चीजें सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट अल्टीमेटली तो क्लैरिटी सबको चाहिए ना सर। देखो, इतने सारे मेंबर्स हैं, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कोई और तो नहीं कर रहा ना, आपकी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है ना। नितिन जी, आप ये बताएं, आपने कितनी मिनट्स पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी है। तो यही तो दिक्कत है ना। आप सीओसी की मिनट्स पढ़ते हैं ना, आपको सारी ट्रांसपेरेंसी मिलती ना उसमें। आपने कभी पढ़ाई नहीं, कैसे पता चला कि आपको ट्रांसपेरेंसी है या नहीं? नहीं, बात अभी उस जो पॉइंट्स विनय जी ने रेज किए उसके भी आप बात कर रहे हो। सुनने से ज्यादा उसके भी आप बात कर रहे हो।
नहीं, सुनने से ज्यादा देखना। प्रभाकर जी, विनय जी ने जो रेज किए पॉइंट उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सर विनय जी ने रेज किया, मैं मानता हूँ विनय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका रोल है रेज करना। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप प्लॉट बायर हैं, आपने कितने मिनट्स पढ़ी और क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन लिया? सर आई ऑलरेडी है ना, आपका प्लॉट है, आपका इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है और आपने खुद ही अपना मिनट्स नहीं पढ़ा कि आपका अपॉइंटेड पर्सन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने खुद ही चेक नहीं किया, खुद ही जज नहीं किया, तो क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आएंगी? केवल आप सुनी सुनाई बातें पे बोलेंगे या पढ़ के भी देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा? नहीं, लिसन, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरे लॉयर ने पढ़ा, मेरे को उसने अपडेट किया। आप लॉयर की छोड़िए, आप खुद मिनट्स पढ़िए कि मैंने कब कब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी स्टेप वाइज, और वो समझिए कि कहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा। ईच एंड एवरी लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन। अच्छा, मेरे को इस बात का जवाब भी दे दीजिए, बहुत सारे लोगों ने पीएलसी दिया है, उन्होंने भी मुझसे कंसर्न रेज किया था कि ये चीजें कैसे होंगी सॉल्व, क्योंकि कोई भी आगे चीजें। आपका प्लॉट कहाँ का है? मेरा भास्कर इनक्लेव का है, जयपुर इनक्लेव का है। अगर आपके प्लॉट मिल जाते हैं, पीएलसी अगर नहीं उसमें लगा हुआ है तो पीएलसी देना पड़ेगा। पीएलसी लगा हुआ है लेकिन लगा दिया है ना मेरे को, मैंने पे भी कर दिया हुआ है। सुनिए ना, पीएलसी वाला प्लॉट अगर आपको नहीं मिला तो आपको पीएलसी वापस की जाएगी। तो ये मेरी कैसे डिसाइड होगा कि पीएलसी मेरी वो डिसाइड क्या, वो तो पीएलसी क्या होता है आप सोचो। पीएलसी मतलब प्राइम लोकेशन चार्जेस। प्राइम लोकेशन चार्जेस मतलब कि अगर आपका रोड के किनारे है, कॉर्नर प्लॉट है या कोई भी है, वो उस पे डिसाइड होता है। अगर आपका प्लॉट की वो जो लोकेशन है अगर पीएलसी वाली है तो आपकी पीएलसी कंटिन्यू रहेगी, नहीं है तो पीएलसी आपको बैक दिया जाएगा। तो सर ये जो पीएलसी चार्जेस आपने प्लॉट बायर से लिए हैं, ये कहीं इनके अलॉटमेंट लेटर में लिखे हुए हैं क्या? पीएलसी चार्जेस जो कंपनी ने दिया है जी लिखे हुए हैं सर, इनके बुकिंग फॉर्म में और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओके, उसी हिसाब से आपने पीएलसी चार्जेस जो है चार्ज किए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ब्रिजभूषण जी, इसमें एक और चीज हुई थी प्लीज वहां पे, जब डॉक्टर ब्रिजभूषण जी का क्वेश्चन आ रहा है, नितिन जी बाद में ले लेते हैं, सभी को अलाउ कर रहा हूँ। डॉक्टर ब्रिजभूषण, सूरज प्लीज डॉक्टर ब्रिजभूषण जी प्लीज। नितिन सर आप म्यूट कर लीजिए, आपके बैकएंड से बहुत आवाज आ रही है सर, आप ऑफिस में। ब्रिजभूषण सर प्लीज। सर मैं म्यूट करता हूँ लेकिन वो म्यूटेड दिखाता है, लेकिन फिर भी वो आपकी आवाज आती है। मैं म्यूट कर रहा हूँ। ब्रिजभूषण सर प्लीज। समझ में आया? नहीं है सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर रिक्वेस्ट भेजी हुई उनको, इन द मीनवाइल किसी और को। कल कोर्ट हियरिंग के बाद में कोई बात नहीं थी, फिर भी दो लोग ये कह रहे थे कि हमें कल उसको विनय सर पर्सनल कोर्ट की हियरिंग के बाद में जो हुआ पर्सनल चीजें नहीं सुन लीजिए। क्या है, अभी एक मैसेज आया है ग्रुप में जिसमें लिखा है कि कर्जत की लैंड पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर फ्लोरिश कर रहा है, वो इनकम आरपी ट्रांसफर करे, इसी में भलाई है। इस तरह की धमकी भरे मैसेज है। तो चलो, कोई और क्वेरी है आपकी? नहीं, सुन लीजिए क्या सिचुएशन है। नहीं, मुझे अगर उसमें एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर है उसके अंदर तो वो जाके वीडियो दिखाएं। नहीं, ये अंदर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या मैसेज आ रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। दिस इज अ लीगल अथराइज मीटिंग। आपके ग्रुप पे जो चल रहा है वो सब अनअथराइज है, ठीक है। अफवाह भी चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इन्हें म्यूट कर दीजिए और अगला क्वेश्चन लीजिए। मिस्टर अमित अरोड़ा को ले लीजिए, अमित अरोड़ा जी को, फिर अनुराग सिंह तिवारी जी को ले लीजिए और फिर आरपी साहब को फ्री कीजिए, फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अमित अरोड़ा प्लीज सर। अमित अरोड़ा सर।